Good morning, friends. Today I'm here with a fresh opportunity which is of Uttarakhand Power Corporation Limited. Starting with this, Uttarakhand Power Corporation Limited is a company registered under Companies Act and it was previously known as Uttaranchal Power Corporation Limited. It is a government undertaking of Uttarakhand government and it is a government company. So if you want to make your career in the power in the public sector, this is a good option for you, and this all salary also which they are providing is quite higher. So if you want to go into public sector, you can definitely might consider going here. And I will tell you the particulars about what are the eligibility, how to apply for this, how about it, where's the official website where you can get this notification, what is the manner of application, and what is the way of selection procedure. Also, I have previously uploaded videos for various other companies such as SPCL, Wipro. And if you want to get the regular updates, please like, share, and subscribe my video for more such future updates. So let's start. Also, my voice might not be clear as I have been suffering from corona. So please bear with me. Just follow the video. You will get able to get what I'm telling. So let's start with this. This, as you can see, this advertisement I have opened is Uttarakhand Power Corporation Limited, and as we can see, they have given various name of post, what is the pay scale, what is the category, and what is the reservation. So here the vacancy which they have came up is not only for the commerce background people but also of different streams such as engineer, electrical, mechanical, of civil engineers, accounts officer, law officer, personal officer, and industrial also. I will show it. As we can see, see this is senior industrial engineer. They have also given what is the pay scale. So as we can see, this is the pay scale given for different categories, but the pay scale in any case will not go, that will be 56,100 per month, that will make up to more than 7 lakh, and the upper limit is 1775 w, that means 21 lakh. So anyway, it is a good option. It is offering a higher amount, and the 7 lakh is not a smaller amount, so you can definitely apply and uh, um, give this exam. So as we will see, there are various restrictions. So the main restriction which they have given is the maximum age limit is 42 years, and it's on 1st January 2021. So if you are your age is above that, you are not eligible to apply for this. And reservation criteria, as we can see, this is given in this table. As you can see, as I will tell you how to you will get to you can get this PDF. I will tell you that also. Just follow the video. And this is the essential qualification. So essential qualification for each of the above post is different, but the basic qualification which you need for every post is that you need to know the knowledge of हिंदी in देवनागरी स्क्रिप्ट. अगर आप लोग को हिंदी नहीं आती है तो आप लोग इसके जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज हिंदी इज़ मस्ट फॉर दिस. सो यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरीज हैं. एक असिस्टेंट इंजीनियर है, असिस्टेंट इंजीनियर्स इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल है. उसमें जो भी लोग इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स हैं लोग अप्लाई कर सकते हैं. देन वी हैव वैकेंसी फॉर सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग. सो जिन लोगों ने भी सिविल से इंजीनियरिंग की है, बैचलर डिग्री ली है, दे आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस सेकेंड पार्ट. इन दोनों का सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे दिया हुआ है. आई विल नॉट बी डिस्कसिंग द सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर दिस. If you belongs to those A and B category, you can refer to this PDF and go through. नेक्स्ट जो है हम लॉ ऑफिसर को डिस्कस करेंगे. लॉ ऑफिसर में इन लोग ने क्लियरली दिया हुआ है कि ग्रेजुएट इन लॉ होना चाहिए विद अ मिनिमम 5 years ऑफ एक्सपीरियंस. मतलब 5 years का एक्सपीरियंस मांगा है. लॉ ऑफिसर में इन लोग ने फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी नहीं है. तो आपका अगर आप लॉ से हैं, लॉ से आपने बैचलर डिग्री ली है और अगर आप लोग के पास 5 years का एक्सपीरियंस, देन यू आर डेफिनेटली वेलकम फॉर दिस जॉब. यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर दिया हुआ है. यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो ऐसा होगा कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव रिटन एग्जामिनेशन होगा, जिसके बेसिस पे आप लोग को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. तो यहाँ पे क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो है वो 40% मार्क्स जनरल के लिए है और OBC एंड अदर कैटेगरीज के लिए अलग अलग कट ऑफ है. तो अगर आप जनरल में आते तो आपके लिए 40% मार्क्स इज़ अ कट ऑफ. यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 मार्क्स, मतलब 0.25 की आपको नेगेटिव मार्किंग होगी ईच इनकरेक्ट आंसर पे. एंड अगर आप लोग को कोई आंसर नहीं देते तो उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी.
जो पेपर होगा वो बाइलिंगुअल होगा, बाइलिंगुअल मतलब 2 लैंग्वेज में होगा। एंड इट विल बी ऑफ 90 मिनट्स। इसमें से 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स का होगा, और जिसमें लॉ क्या इलेक्ट्रिसिटी लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कंज्यूमर, जनरल लॉ एक्सेट्रा और जनरल अवेयरनेस का होगा। और जो सेकेंड पेपर होगा वो होगा 2 आवर्स का 100 मार्क्स का ऐसे राइटिंग होगा, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कंज्यूमर, लेबर लॉ एंड जनरल लॉ होंगे। नेक्स्ट जो अपन डिस्कस करेंगे वो है अकाउंट्स ऑफिसर का। अकाउंट्स ऑफिसर में इनने यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दी हुई है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। वो ये है कि यहाँ पे ये सी ICW एंड MBA तो है ही, उसके संग यहाँ पे इनने एक चीज़ लिख दी है प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन। प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन, आई मस्ट क्लियर दिस आउट, कि प्रेफरेंशियल मतलब ये है कि अगर आप लोग के पास वो एक्सपीरियंस है तो वो आप लोग को प्रेफरेंस देंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अप्लाई नहीं करें। अगर आपके पास 2 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, इट्स गुड, बट अगर नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव गिवन इट एज प्रेफरेंशियल नॉट मैंडेटरी। सो यहाँ पे उन लोग का जॉब डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है कि दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ट्रेजरी, बजट, MIS, कमर्शियल वर्क एट कॉर्पोरेट लेवल, फील्ड एंड फील्ड यूनिट्स। यहाँ पे भी जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो लगभग जो अपने लास्ट में देखा था वैसा ही है, बस यहाँ के जो टॉपिक्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। जैसे कि पहले इलेक्ट्रिसिटी लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ वगैरह थे, तो यहाँ पे जो जैसे ये अकाउंट्स की जॉब है तो इसमें जो एग्ज़ाम होगा वो 60% होगा अकाउंट सब्जेक्ट से रिलेटेड, जिसमें फाइनेंस, अकाउंट, ऑडिट, बजटिंग होगा, और 40% जो क्वेश्चंस रहेंगे वो जनरल अवेयरनेस के रहेंगे। मतलब 100 क्वेश्चंस में 60 क्वेश्चंस विल बी रिलेटेड टू फाइनेंस, अकाउंट्स, ऑडिट एंड बजट, एंड 40 क्वेश्चंस जो रहेंगे वो आप जनरल अवेयरनेस के रहेंगे, जिसके लिए आपको 90 मिनट्स मिलेंगे और 100 मार्क्स का पेपर होगा। ये आपका हो गया फर्स्ट पेपर। सेकेंड पेपर में आप लोग को 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, जिसमें आपको 2 आवर्स रहेंगे, एंड इट विल बी अ रिटन टेस्ट। ये आपका मतलब एक सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा जिसमें आपको फाइनेंस, अकाउंट्स, ऑडिट एंड बजट पे लिखना पड़ेगा। ये भी सिमिलर है जैसा लॉ में था, बस इसके सब्जेक्ट्स चेंज हो जाते हैं कि किस में क्या चीज़ के ऊपर हमारा आएगा सब्जेक्टिव। नेक्स्ट जो आता है पर्सनल ऑफिसर। पर्सनल ऑफिसर में एक बार आउटलाइन डिस्कस कर लेती हूँ। ये जो है पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, बिजनेस मैनेजमेंट विथ स्पेशलाइजेशन पर्सनल मैनेजमेंट है, विथ अ मिनिमम ऑफ 5 years ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। मतलब ये HR वाले लोगों के लिए, HR प्रोफेशनल्स इन्हें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ली हो और उनके पास 5 years का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी, मतलब ये फ्रेशर्स के लिए अप्लाई नहीं करता। सो इफ़ यू हैव 5 years पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यू कैन गो फॉर दिस। नेक्स्ट आता है सीनियर इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स का। ये भी मैं डिस्कस नहीं करूँगी बिकॉज इफ़ यू फॉर इन दिस कैटेगरी यू कैन गो थ्रू दिस। यहाँ पे एज रिस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं सारी कैटेगरीज के लिए। ये दिया है एज रिस्ट्रिक्शन, अपन ने पहले ही देखा था कि 1 जनवरी 2021 को 42 ईयर से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। अपर एज रिलैक्सेशन, अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में है तो आपके लिए 5 years का हो जाएगा। यहाँ पे जो है ये दिया है कि रिटन टेस्ट कौन कौन सी सिटीज़ में होंगे, देहरादून, हरिद्वार, श्रीनगर, पटनगर, अल्मोड़ा। एप्लीकेशन फ़ीस इसके लिए बहुत ही लोअर रखी गई है, 800 इज़ फॉर जनरल, OBC एंड EWS, एंड 400 फॉर ST कैटेगरी ऑफ उत्तराखंड स्टेट। जनरली बाकी जो हम PSU के फॉर्म्स देते हैं उसमें मतलब 1000 से नीचे कोई फ़ीस नहीं होती। CS का जो फ़ीस का क्राइटेरिया ये बहुत ही लोअर है, बहुत ही कम फ़ीस मांगी है। इसमें बोला है कि ऑनलाइन के अलावा और कोई फ़ीस का मोड नहीं होगा, और वंस फीस इज पेड इट कैन नॉट बी रिफंडेड, इट विल बी फोरफिटेड। और यहाँ पे एक मेन चीज़ कैच जो है इसमें कि इसमें सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म जमा करने से आपका एप्लीकेशन वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसमें इन लोग ने क्लियरली दिया हुआ है कि एडवर्टीज़मेंट तो यहाँ पे हम लोग ने पब्लिश कर दी है 2-3 जगह पे। एक UPCL.org है, एक TSC पटनानगर है। यहाँ पे दिया है द कैंडिडेट विल हैव टू सबमिट दैट एप्लीकेशन ऑनलाइन एंड गेट प्रिंटेड एप्लीकेशन ऑफ द सेम विच शैल बी सबमिटेड टू GBPUAT अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट्स एंड फीस रिसिप्ट। मतलब आप लोग को सबसे पहले ये वाला जो फॉर्म है मैं बताऊँगी कहाँ से भरना है, उस फॉर्म को भरना है ऑनलाइन, उसके बाद उसका प्रिंट आउट लेना है, उसके साथ उसकी फ़ीस की रिसिप्ट लगानी है, और फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स के साथ आप लोग को ये जो एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पे इन लोगों ने दिया है कोऑर्डिनेटर टेस्ट
एंड सिलेक्शन लैम्बर्ट स्क्वायर गेस्ट हाउस। यहाँ पे ये जो एड्रेस दिया है, यहाँ पे उन डॉक्यूमेंट्स को पोस्ट करना है। मतलब ये सबसे बड़ा कैच है, क्योंकि अगर आप लोग पोस्ट नहीं करते तो आपका वो जो एप्लीकेशन का प्रोसीजर है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो यू शुड मेक श्योर कि आप लोग एक बार एप्लीकेशन भरने के बाद इसकी हार्ड कॉपी भी वहाँ पे भेजें। यहाँ पे फिर इसके बाद उन्होंने जनरल दिया हुआ है कि कब तक लास्ट डेट जो है वो उसकी 16 तारीख है। 8 तारीख ऑलरेडी हो चुकी है, तो अगर आप लोग को भरना है तो उसमें जल्दी भर दीजिए, बिकॉज वहाँ पे पहुँचने में भी कोरोना चल रहा है और अभी लॉकडाउन के चलते वहाँ पे हार्ड कॉपी पहुँचने में भी टाइम लग सकता है। इसलिए इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर दिस, गो एंड अप्लाई, बिकॉज लास्ट डेट सिर्फ 8 ही दिन बचे हैं, सो अप्लाई। एंड यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, तो वो भी आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। और यहाँ पे एक वो था क्लॉज था कि अगर आप लोग एक से ज़्यादा कैटेगरीज में फॉल कर सकते हैं तो आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, फिर से कर सकते हैं। तो ये वाला जो क्लॉज है, थर्ड क्लॉज, ये हम देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है क्लियरली कि अगर आप मोर देन वन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं आपके क्वालिफिकेशंस के हिसाब से, तो आप 2 एप्लीकेशन भी भर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप एक ही फॉर्म के लिए, एक ही जॉब पोस्ट के लिए 2 बार अप्लाई करेंगे तो आपकी एक तो फीस भी चली जाएगी और आप लोग को रिजेक्ट भी कर दे, हो सकता है रिजेक्ट भी कर दे। तो आप लोग 2 एप्लीकेशन फॉर्म एक ही पोस्ट के लिए ना भरें, और अगर आप दो कैटेगरीज में फॉल करते हैं तो देन इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। आप 2 एप्लीकेशन फॉर्म भरिए अलग जॉब के लिए। सो ये जो था, ये मैंने प्रोसीजर बता दिया कि ये जो भी डिटेल्स थी आप लोग एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे डेट्स दी हैं कि 16/4/2021 के पहले आपको भरना है ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन की। और यहाँ पे ना लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ इंक्लोजर्स का भी लास्ट डेट दी है। मतलब ये जो है आपको 16 तारीख तक अपना ऑनलाइन फॉर्म भरना है, और विद इन 10 डेज मतलब 26 तक, 26 के पहले तक आपको अपनी जो भी हार्ड कॉपीज़ हैं वो वहाँ पे एड्रेस पे भिजवानी है। सो आप लोग 16 तक का टाइम है आप लोग के पास, आप लोग डिसाइड कर लीजिए, जल्दी से फॉर्म भर दीजिए। अब मैं आप लोग को बताऊँगी कि ये जो वेबसाइट है यहाँ पे पहुँचना कैसा है। ये जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ से TSC पटना अगर गूगल में जाके सर्च किया, यहाँ पे हमें जो फर्स्ट लिंक मिलेगी हमें उस पर जाके क्लिक करना है टेस्ट एंड सिलेक्शन में। जब हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशंस में एक डाउनलोड डिटेल एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है, हम इसमें क्लिक करेंगे तो जो PDF अभी हम देख रहे थे ये वही PDF पे हमें डायरेक्ट करेगा। ये सारी डिटेल्स एक बार आप लोग पढ़ लीजिए फॉर्म भरने से पहले, सो दैट यू कैन गेट अ क्लैरिटी ऑफ व्हाट डिटेल्स आर रिक्वायर्ड देयर। सो ये वही वाली PDF है जो भी हमने देखी थी। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पे ये एक जो लास्ट लेटेस्ट अपडेटेड अलर्ट्स आ रहा है, यहीं पे हमें मिलेगा अप्लाई करने का ऑप्शन। सो ये ये देखिए यहाँ पे लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर द टिक हियर टू अप्लाई दिया है, हम इसमें क्लिक करेंगे और ये जो न्यू रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट है ये ओपन हो गई है। यहाँ पे आप हमें अपना ऑप्शन, रेलिवेंट ऑप्शन देखना है, ये है रजिस्टर का ऑप्शन, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अपना नाम और कैप्चा कोड डालेगा। जब हम ये कर देंगे तो उसके बाद हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उस वेबसाइट में। उसके बाद हम अपना सारी डिटेल्स भर के ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। सो आप लोग इसमें अप्लाई करिए, एंड प्लीज़ टू गिव मी अ रिव्यू हाउ आर द वीडियोज़, एंड so that it motivates me as to how I can improve my videos. And please make sure that you like, share and subscribe the video so that you get the future updates. Thank you.